सॉल्व करी है? बहुत। सुडोकू आपने सुना है भाई, सुडोकू के बारे में? सुना है लेकिन करा नहीं यार कभी, अभी करूंगा अभी। कह रहे हैं जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, इट्स इम्पोर्टेंट टू डू टू कीप योर ब्रेन शार्प। एल्जाइमर हो जाता है इतनी तो। अल्जाइमर। अल्जाइमर, यस। ठीक है जी, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तो कर लिया यार हमने, पी पी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इट फॉलोज फ्रॉम थर्ड दैट ये क्या पी, एग्जांपल खोलिए? अच्छा नहीं नहीं, हुआ। अच्छा अच्छा। to prove that F5 node E and are disjoint events, therefore first axiom is मैं तो P कर लिया था। union। मतलब यार इंग्लिश क्या लिखी हुई है, क्वेश्चन पूछो यार। व्हाट इज द क्वेश्चन? यहाँ तो क्वेश्चन For ही नहीं example, in a coin tossing experiment, we can assign the number half to each of the outcomes H and T। हाँ कैन, हाँ 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है तो। वेयर इज द इंग्लिश? Clearly, this satisfies both the condition. Each number is neither less nor greater than zero. Probability cannot exceed one, and the least probability is zero, and impossible even probability is null। इसके लिए इतनी मतलब मुश्किल इंग्लिश क्यों बना दी इन्होंने? Therefore, say we probability of h is 1/2 and the probability, yes. If we take ph is equal to 1/4 and pt is equal to 3/4, okay, then what happens? Both are valid probabilities because the sum is। यार मैं तो इस I don't know this language, but without this also, with the same logic we have learned, we can do these questions। रद्दीदास शर्मा का बस पीडीएफ पढ़ा है? नहीं, पढ़िए रद्दीदास। रद्दीता सही नहीं मेरे बस। एक देखते हैं अच्छे, अभी। What is he trying to communicate? एक Yes, बड़ी in case we find that both 1 and 2 are valid for probability of H and T. In fact, we can assign P and 1 minus P to both the outcomes such that this assignment 2 satisfies both conditions of the axiomatic approach of probability. Hence, we can say that there are many ways to assign probabilities to, rather infinite ways to assign probability to outcomes of an experiment. Now, if we consider some of the examples, okay, let's consider the examples. Which of the following are valid? So this is a rule-based probability following some conditions। बहुत अच्छी बात है। एक्सियोमेटिक। यस, इसका मतलब क्या होता है? रूल बेस्ड, एक्सियम्स, थ्योरम। अच्छा। ओके, so these are the outcomes which are possible। This is a total sample space। Sum of probability of 1 2 3, sum is 6। ठीक है, sum is 1, probability is 1, probability is 1। इसकी probability कितनी आ सकती है? 1/8, 2/3, ये 1/3, ये दोनों कट गए, ये 2/3 और ये कट गया 1/8 और -1/4, तो ये आ गई 1 माइनस 1/8। Hey, what is the meaning of the word -1/4 probability?
The probability doesn't exist. 2 by 3 is some is coming out to be positive. 7 by 8. Some should be for all events, some should be 1 na. अरे इन Three. probabilities को eliminate कर दो. Hmm. Yeah, this is सर क्योंकि माइनस में negative probability हो probability. ही नहीं सकती ना मेरे हाँ ख्याल से. ठीक है. Not valid. And look at the one more example. This one. इसका सम क्या आ रहा इसका सम है? ये हेलो हेलो हेलो. वो है नहीं. हॉस्पिटल गया हुआ है. क्या सम आ रहा है इनका? हाँ वही चेक कर रहा हूँ. ओए 0.66 1.5. ये तो एक सेकेंड यार.
हाँ जी, हो गया। सम क्या है? ये ये सम इसका जो है थोड़ा वन से ग्रेटर देन वन है तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, और ये भी सारे पॉसिबल इवेंट्स है, तो बस पॉसिबल एक नहीं ही है। पॉसिबल है। मैच कर लेते हैं। हाँ। यस, नहीं। नॉट वैलिड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट, सारे सिंपल इवेंट्स हैं। ओके, थ्योरेटिकली इन्होंने एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, इसमें एक्सियम क्या था? ये तो दिस इज सम कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, नेगेटिव। लो जी, पकड़ो। लो जी, examining three consecutive pens produced by a machine and classified as defective and bad, non-defective and bad. We may get 0, 1, 2, 3 for defective as a result of this examination. Okay, तीन पेन निकाले, तीनों बैड, दो बैड एक गुड, दो बैड गुड, गुड बैड बैड, एक दो तीन चार आठ. What is the probability of getting all three bad pens? 1 by 8. BBG. And what is the event now? There is exactly one defective pen. So this is the complete sample space. The हाँ, event he is defining is as exactly one defective pen. There is exactly one defective pen, and event B, there are at least two defective pens. Okay, so event A, what are we supposed to find? Find, अच्छा, so इसके A के सारे वो लिख लिए. Okay, events. One defective pen का मतलब है one bad, right? This is defective का मतलब है B. So one BGG, GBG. ओके, सो तीन पर, ठीक है. वन बी को कैसे डिफाइन करा? देर आर एटलीस्ट टू डिफेक्टिव पेन्स. बीबी जी, बीजीबी, जीबीबी, बीबीबी. ओके, ये बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, निकालना क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, 1/8, थ्री बाई बाई एट एट। वैसी, 3/8. हाँ, और दिस इज और दूसरी वाली 4/8 फोर बाई एट. मतलब कॉम्प्लीमेंट। इसमें व्हाई हैज ही मेड इट सो डिफिकल्ट टू राइट? लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस. एक coin. Okay, so head head, tail tail, head tail, tail head. Okay, so बना लो, सैंपल स्पेस बना लिया. हाँ, What is बट the probability of getting both the heads? 1/4. बट ये इसमें एग्जीमेटिक था क्या वैसे? Rule based थी जी, rule based. I don't know what was the rule here. What rule was he referring to? मतलब something which does not happen, probability zero, which is sum of probability of members of a sample space individually is equal to वन. दैट वाज अनदर, वो भी पता था. 0 to 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी. सो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, कि सम वाज नॉट ग्रेटर देन वन. तो वैसे ही मतलब जनरली नोन फैक्ट है. कोई छोटू आया है यार इस पे, यूट्यूब पे लिख रहा है छोटू, हेलो. क्या फर्क पड़ रहा है? यार वो दिखता नहीं मुझे, लाइव चैट चलती है लाखों लोगों की. हाँ, लाखों लोग, एक लोग के करंटली तो एक लोग है। ठीक है, Currently। स्टार्ट, एवरीथिंग स्टार्ट कोई स्मॉल नहीं, यार. बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। हिम्मत मत हारो, लगे हाँ, रहो सैनिक, सैनिक लगे रहो. हाँ। ओके. धीरे धीरे आपका 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएगा। बस जी, शुरू ही हो चुका हो ना. वो हाँ, चार बस। लाख
4 लाख ईयर्स में हो जाएंगे जिस रेट से हो रहा है। सो भाई तो मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो बनाने का स्टाइल बदल लो ना। राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके। मेरी मॉम भी एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रही है। अरे वाह, वेरी नाइस। बोलने आना चाहिए सही। हाँ। लेट ऑल द आउटकम्स बी इक्वली लाइकली टू अकर, द चांस ऑफ अक्रंस ऑफ ईच सिंपल। हाँ ठीक है, ये होती है एक्जिमेटिक प्रोबेबिलिटी। सम इज इक्वल टू 1, ये भी पता है मैं सबका इंडिविजुअली। ओके। तो इंडिविजुअल इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू, यही फाइनल, तो ये समझ में आया। हाँ ठीक है, तो ऑलरेडी नो टोटल फेवरेबल। व्हाट इज द पॉइंट बीइंग ड्रिवन? माय वाइफ हैज फॉलोअर्स, 1100 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स मतलब। वही क्या होता है सब्सक्राइबर? वो अच्छा। 5 वीडियोस टोटल। 5 वीडियोस आपके, क्या कहते हैं, 2300 वीडियोस हाँ। एंड 700 सब्सक्राइबर्स, क्या आई ग्रोथ है। मेड आई मेड क्वालिटी स्टफ। या क्वालिटी, यस, दिख रहा है। वन फॉर एवरी हाई सब्सक्राइबर क्वालिटी आई मेड कंटेंट। 3 वीडियोस। हाई क्वालिटी कंटेंट। यस। वेरी नाइस। हाँ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी। ओके। और बी में ऐड करना होता है। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेट ए बी and B is equal to be two events associated with tossing of a coin thrice. So A और B में दोनों इंक्लूड करने हैं। ए और बी में कॉमन भी इंक्लूड करना होता है, एंड बोथ भी आता है ना। ये HTH कॉमन हो गया। बट ये सब तो पढ़ ही चुके हैं एक तरह से। THS, हाँ मतलब आई एम बिट, व्हाट इज द पॉइंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले। इवेंट कौन सा ऐड हुआ है इसके अंदर? सर ये एच कौन एच सा, टी लाइक हम को ये वाला पेज नंबर कौन सा एनसीईआरटी का? 299। हाँ यही यही पॉइंट नहीं पता था ना, अब आ रहा है पॉइंट। जो कॉमन है उसको सब 2 बार से ऐड हो गया ना वो, उसकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा। जो दोनों के अंदर कॉमन है, एंड यू आर कैलकुलेटिंग ए और बी, बट प्लीज सब्ट्रैक्ट विच इज कॉमन इन बोथ, दो डबल ऐड हो रहा है वो। भाई ये वाला देखो ना, ये इसमें वेयर इज इट? HHT, HTH एंड THH, ये एक है, इसमें भी है HTH, HHH, THH, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ये ए यूनियन बी निकालने को बोल रहा है, तो HHT, HTH, ये सारे हो गए इवेंट्स, इनकी प्रोबेबिलिटी। पी ए की हो गई 3/8, इसके 3 इवेंट्स हैं। और पी बी की हो गई 3/, पी बी की कितनी हो जाएगी? 3/8, 3 उसके भी हैं, टोटल आ गई 6/8। तो पी ए यूनियन इज इक्वल टू पी ए, बट ये दोनों कॉमन है। तो दीज आर कॉमन, तो 2 बार ऐड हो गए, HTH एंड THH आर इंक्लूडेड ट्वाइस। टू गेट द प्रोबेबिलिटी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम, सो ये जो है कॉमन वाला सब्ट्रैक्ट कर दो।
जो दोनों में इंटरसेक्शन है, सब्ट्रैक्ट इट। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन ये है, unless the intersection is zero, there is nothing common, then PA plus PB. But if there is something common in A and B, subtract its probability. Look at the. Hmm. This is a difference. If these events are mutually exclusive, which means there is no commonality between the two events, then the answer is this, reduced to this. Then you don't need to subtract the common probability, जो repeat हो गई. मैं तो यार without even knowing this, I would have done this. मतलब मैं ऐसे तो कुछ जीनियस चीजें तो नहीं बताई। हाँ मतलब दिस इज उसको इतना ओवर एक्सप्लेन कर दिया कि तो वैसे ही इफ यू स्टार्ट मेकिंग द राइट इवेंट्स एंड राइट सैंपल स्पेसेस, अपने आप आंसर आ जाता है। उसके लिए यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी थ्योरम और एनी रूल। प्लीज, दैट इज व्हाट आई डू। इस कर ले क्या है, एक्सरसाइज। पहुंचते हैं, देखते हैं कुछ बता रखो। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए अच्छा इज, कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री, वन माइनस। हाँ, तो अकरेंस ऑफ ए इज दिस 2 4 6 8, occurrence not A is 1 3 5 7, तो वन सैंपल माइनस टू स्पेस। बाई फाइव आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट जो उसका होगा। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है उसके अंदर, 6 बाय, हाँ 3 बाय 5 2 बाय 5, ठीक है। ओके एक बार जरा पीडीएफ भी पेस्ट कर दोगे क्या एनसीईआरटी का? यार, पूरी एनसीईआरटी है, लेट मी ट्राई, 25 पेज है, एक बार हो ही जाएंगे शायद। फिर पेज कैसे बदलेंगे, हर पेज में जाके ऐड करनी पड़ेगी। नहीं, मैं बस चेक कर रहा हूँ जरा क्या क्या है इसके अंदर, क्या दे रखा अच्छा एक सेकेंड, है। प्रोबेबिलिटी। सर आपके टाइम पे कोई थर्ड लैंग्वेज वगैरह होती थी? सेकंड लैंग्वेज टेंथ क्लास? हाँ सेकंड थी, सेकंड मतलब लैंग्वेज एक लेनी, हिंदी, संस्कृत या फ्रेंच। अच्छा, तो आपने हिंदी ली थी? संस्कृत लेने हिंदी चाहिए थी। हमने आई वाज, संस्कृत ही ली थी, व्हाट? अच्छा, दोहे आते यस, हैं आपको? दोहे नहीं, सॉरी, श्लोक। हाँ ये लो जी, कर दी अपलोड। 12th में भी बिल्कुल मैंने यही पढ़ाया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपका तो ट्वेल्थ का अलग है। मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा अभी तक। हो गई अपलोड। इसी पेज में। हाँ बस हो ही गई। हो गई। आई एम ऑन पेज नंबर 14।
पेज नंबर 14 पे हो। ठीक है, एग्जाम्पल 5। अरे कार्ड्स वाले। सर डायमंड कार्ड्स 13 होते हैं, तो 13 पॉन 52, 1/4। जी। नॉट एन एस। ठीक है। 4/52 इज 1/13 ना। You should first write the events. That there are 13 events in a diamond. आंसर सही होना चाहिए। हाँ तो द 13 अपॉन सोल्यूशन। 52 ही था। हाँ, तो पहले बताओ ना कि द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज अ डायमंड इज 13 एंड यू डिनोमिनेटर सैंपल स्पेस PS। सैंपल्स बताने पड़ते हैं ना कितना है टोटल। ये क्या करा। इवेंट इज डायमंड, सैंपल स्पेस इज 52। नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स। जी। ये था ना रोस्टर फॉर्म लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है सर जब वैसे कहीं इंग्लिश लिखते एनसीईआरटी हैं। ने जब कुछ सोल्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ वैसे रोस्टर फॉर्म। अच्छा, 13। सैम और 52 तो दे ही रखा है, तो ठीक है, नंबर ऑफ। प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 13/52। ठीक है। अब सर नॉट एन एस, तो सर 12/13 सेकंड पार्ट का आंसर। नॉट एन एस। हम्म, बैलेंस नहीं, चार नहीं होने चाहिए ना सिर्फ, तो दैट मीन्स 48/52। ठीक है। हाँ। कौन सी एग्जामेटिक यूज करी, सब कुछ के बिना होता जा रहा है। अच्छा, ब्लैक कार्ड। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। नॉट एन एस, ओके। टॉपिक वो है, ठीक है, नॉट ए। अब ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड ऑफ ब्लैक कार्ड्स। नॉट अ डायमंड।
नॉट अ डायमंड मतलब 13, 1 - 1/4। डायमंड का नॉट ए हो गया ना, नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स। 1 - 1/4, ठीक है, 3 3/4। बाय। Not a black card. Done. ये हमारे पास 10th में भी था। सेम। हम्म। नॉट अ ब्लैक कार्ड मीन्स मतलब ऑल रेड और क्या। हाँ, ठीक है, एक ही बात। नॉट वेरी हार्ड। हम्म। एक मिनट, मैं तो उसमें कॉपी कर चुका हूँ। अच्छा ये है ना, पेज नंबर 15। विच पेज आर यू सीइंग? 14। ओके, तो Now I am वी in कैन 15. we can independently see the same book on And separate pages. मैं कोई 15 वो पे नहीं है। हूँ। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट पेज आ गया ये। इसी कर दो क्वेश्चन। 1 मिनट रुकना। कर दिया। जस्ट अ मिनट। नो प्रॉब्लम। येलो डिस्क, रेड डिस्क। 9 और 4/9। अरे यार क्या क्वेश्चन बनाए हैं।
कैलकुलेट नॉट अ ब्लू, बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। हो गए। ओके, ये हमने करा, ठीक है, ठीक है। 12th और 11th में तो कोई फर्क ही नहीं है फिर। हाँ, ये थोड़े से, थोड़े क्या, बराबर ही है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। 12 में तो फिर वो आ जाती होगी ना, बेस थ्योरम वगैरह वगैरह। बेस थ्योरम एक एक्स्ट्रा है। उसमें ट्री बनाना पड़ता है थोड़ा सा। वेटेज कितनी है इसकी वैसे? शुड बी अराउंड व्हाट, 8 नंबर की होगी प्रोबेबिलिटी। स्ट्रेट लाइंस और कोनिक सेक्शंस? 8 नंबर। तो सारे चैप्टर्स की है ऐसी ऐसी? स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन। हाँ। स्कूल ने दिया तुम्हारे कुछ ऐसा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा, लाइक जेई मेंस में कितने होंगे मेंस एग्जाम में? जेई में? यार उनका कोई ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल 12 की है। अच्छा। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 12 की है। ठीक है। कैलकुलस 8 का है। सेट्स 20? एंड फंक्शन 23 का है। एलजेब्रा 23 का? 25। हाँ, अरे, क्या बात है! फंक्शंस कितने बहुत टोटल हैवी नंबर? है। 23, इंटरनल 24? असेसमेंट 20 नंबर। 80-20 होता है तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट, होता है 20। नहीं, मैं तो मेंस का पूछ रहा था वैसे। जो जेई मेंस का, उसका कोई ब्रेकअप नहीं होता यार। अच्छा, अच्छा। कफ कफ। अरे, मुझे तो कोल्ड हो गया था। आवाज में आ गया। ये आवाज ऐसी आ रही है मेरी? थोड़ी सी अच्छा, अच्छा। नेजल नेजल ट्वैंग बोलते हैं। अच्छा। Two students, Anil and Ashima. ये कैसे जज कर सकते हैं भाई? ये तो गलत बात है। हाँ जी। मैं इसके पूरे स्टेप्स एक्सप्लेन करूँ क्या? किसके कर लेना यार बाद में, पहले। अच्छा। Will qualify and Ashima, the will both will वो तो qualify the examination. both will not qualify. हाँ ठीक है। 0.02, which is point zero Not qualify, nine okay, eight. complimentary. At least one of them will not qualify the exam.
इसमें डी मॉर्गन नहीं होती थ्योरम, सेट्स में होती है, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा लगाते हैं। नहीं, ये तो मैंने अभी प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है इसके आगे। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, सो सो दैट मीन्स बोथ क्वालिफाई, राइट? ये तो पहले वाला कर लो ना। ओ,
तो इन्होंने भी लिखा है डी मॉर्गन के बारे में। पहले वो निकाला कि बोथ विल क्वालिफाई के चांसेस कितना है। एक मिनट, बोथ विल क्वालिफाई, बोथ विल क्वालिफाई में, तो इसका मतलब है बोथ विल क्वालिफाई में अनिल विल क्वालिफाई एंड आशिमा विल क्वालिफाई, राइट? हाँ जी। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकली? 0.13, 0.13। 0.13। ये बोथ है या और है? और समझ नहीं आया। ये है विल नॉट क्वालिफाई, राइट? विल क्वालिफाई, हम्म। इट इज एज गुड एज सेइंग both Anil and Ashima will not qualify the examination. Will not qualify. तो अगर मैं बोलूं अनिल विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो कितना आएगा? 0.1 माइनस 0.05, हम्म। नॉट नॉट के हिसाब से। एंड आशिमा ऑल्सो डज नॉट क्वालिफाई। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.0, 0.95 एंड 0.90। सो बोथ नॉट क्वालिफाई, 0.95 इंटू 0.90 कितना आता है ये? एक 5% है। 5 9 ज़र 45, 81, 86.50। अच्छा, यू गॉट दिस। हाँ। मतलब मैंने ये लिख निकाला है अनिल डज नॉट क्वालिफाई, ये निकाला है मैंने आशिमा डज नॉट क्वालिफाई। एंड के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उन दोनों को साइमल्टेनियस। हाँ, बट ये भी सही है कौन सा? मेरा मेथड। हाँ सही है। मतलब ये है ना कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर रहे ना। तो इसी वजह से यहाँ पर ए यूनियन इसको लाइक डी मॉर्गन्स लॉ। आपकी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, मेरी प्रिसाइज आ रही है। चलो, लेट अस सी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। हाँ, व्हाट इज योर आंसर टू दैट? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई और। एटलीस्ट वन ऑफ देम। नहीं तो मैं हाँ। बोलता हूँ अनिल क्वालिफाइज एंड आशिमा डज नॉट क्वालिफाई, प्लस अनिल डिसक्वालिफाइज मल्टीप्लाई बाय आशिमा क्वालिफाइज, प्लस बोथ डिसक्वालीफाई। एटलीस्ट है ना? हम्म। तो अनिल क्वालिफाई कर गया, 0.05 है। हम्म। आशिमा डज नॉट क्वालिफाई, 0.90 है। अनिल डज नॉट क्वालिफाई, 0.90 है, नहीं 0.95 है। एंड आशिमा डज नॉट क्वालिफाई, आशिमा क्वालिफाइज 0.10 है। बोथ डोंट क्वालिफाई, 0.90 इंटू 0.90 इंटू 0.95, ये आ गया। यू डू योर विद योर ओन मेथड, लेट अस कंपेयर क्या फर्क है। अच्छा, पॉइंट इसका आ नाइनटीन गया, तो पॉइंट इसका आ गया 45, 5 9 ज़र 45। सही गलत है। गलत नहीं है, गलत नहीं, सच नहीं। करके देख लो आप। 0.05 है, सॉरी 0.05, पॉइंट तो अगर जीरो ऐड कर लो उनको, वैसे काफी लेंदी है आपका। 9 5 ज़र 45। मेरा आ रहा है 0.045। ये कितना है मेरा? 0.95 इंटू 0.1, 0.095, और 0.86, 0.8650, 0.0450, 0.0950, 15।
ये तो यार 1 से बड़ा आ जाएगा मेरा. हाँ ये गलत है फिर। This thinking is wrong. At least, so one passes, the other fails. One passes, the other fails, and both disqualify. At least one. Point 0.095. This is 0.45, and this is. यस, डन। 0.98। ये आ जाएगा आंसर, 0.98 है। हाँ जी. हाँ, क्या आंसर आया? 0.98। हाँ, you explain me what was your approach. हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ ना। डी मॉर्गन लॉ तो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ी नहीं, बट if you have to explain your answer, how will you explain this? तो ये सबसे नॉट पहले है. तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है या तो आशिमा क्वालिफाई करे नहीं करेगी, या तो अनिल नहीं, क्वालिफाई बट नहीं इसने तो करेगा। लिखा एटलीस्ट. हाँ तो कम से एटलीस्ट। कम एक तो, दोनों भी तो सिचुएशन होगी. Why? So you will take only at least one. Why not both? ये तो लीस्ट है, हाईएस्ट क्या है? बोथ विल डिस्क्वालीफाई ना. हाँ तो Why you have not included that? पर फिर भी वो 0.98 ही होएगा ना। क्यों? तो ये बोथ तो डिस्क्वालीफाई देन. वैसे ए यूनियन बी का मतलब आइदर है ना, और वो होगा मतलब, लेकिन क्वेश्चन का क्या मतलब है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो इसमें वो भी तो इंक्लूड हो गया, बोथ डोंट क्वालिफाई. अच्छा अगर हम वो इंक्लूड करते तो 1 नहीं आ जाएगा आंसर? 1 नहीं आ जाएगा आंसर? नहीं, हम्म। उसमें वो आएगा, एक रह जाएगा. बोथ क्वालिफाई. एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। हाँ तो वन, एक तो वो हो गया, एक एक दोनों क्वालिफाई नहीं हुए एक एक बार. एक हो गया दोनों क्वालिफाई हो गए, एक हो गया दोनों क्वालिफाई नहीं हुए. वन कैसे हो जाएगा? ए एटलीस्ट वन ऑफ देम. सर वैसे ही मैं बताता हूँ आपको। योर आंसर इज करेक्ट. सर देखो, ये हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यूनियन के अंदर वो इंक्लूड ऑलरेडी हो चुका है। एटलीस्ट का मतलब वो यूनियन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, यूनियन सेट में। See, 0.02 is the probability that both will qualify. वो कहाँ पे इंक्लूडेड है? बोथ विल नॉट क्वालिफाई. इसका क्या मतलब है? बोथ विल क्वालिफाई, राइट? हाँ। ये कॉमन है. हम्म। इसमें एक मिनट. If I do 0.90 into 0.95 and I get a 0.650 and I get a 0.95. Mm, एक मिनट यार. If I do this addition also, this is 0, this is 15, this is 1, 7 and 9, 7 and 4, 11, 11 and 9, 20. सर वैसे हमने एक चीज है, हमने 14.1 एक्सरसाइज नहीं करी है। कहाँ है वो?
सर हम उसको पीछे छोड़ा है। किधर है भाई 14.1? ये एक्सरसाइज है। क्या है वो? हाँ है, लेकिन ये मतलब क्यों, ये हमने कर तो ली थी। यू सेड कि मैं ये वाला खुद कर लूंगा कि टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, एक याद मिनट। कर लूंगा मैं। ये तो पिछली बार तो करी थी हमने, एक्जिमेटिक से पहले एक्सरसाइज ये वाली। आई गेव यू दिस क्वेश्चन, थ्री कॉइन्स आर अच्छा अच्छा, टॉस्ड, हाँ हाँ, देन यू चलो। सेड मैं मेमोराइज कर लूंगा, मैं कर लूंगा ये। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हमने करा था, मैं क्लास में ही कर लिया था ये। हाँ। अच्छा अच्छा। देखो 14.2 कहाँ से आ रही है? आई एम जस्ट थिंकिंग वेयर इज माई थिंकिंग रॉन्ग। आई एम सेइंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। यू हैव ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड द सेम थिंग, वन माइनस बोथ में इंक्लूड कर लिया ना, लेकिन हम्म। मैंने अलग अलग कैलकुलेट करा है उसको। मतलब मैं बोल रहा हूँ फेल, मतलब जो भी है डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग है मेरे आंसर, इतना है। मतलब अनिल जो अगर फेल हो गया तो 0.95। बट आप ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज कर रहे हो। यार ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है इसमें एक मिनट, 0.95 इंटू 0.9 मल्टीप्लीकेशन में क्या आता है? 9 5 जार फोर्टी सर ये फाइव आता है 855। हाँ, यही तो राज है। मैंने इसको क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये एट आपने फाइव सर फाइव एट कैसे सिक्स है? फाइव नहीं लिख दिया उसको? एक हाँ। मिनट, तो भी अब ये आ गया, आ जाएगा। नहीं आ रहा सर ना। ये 0.9, अच्छा। ओके 14, हाँ आ तो गया। अरे रुको, कहाँ है? दिस इज 4 ना? हाँ। पहले को ये मेरे को 4 है और ये 9 है ना? सो ठीक है। पॉइंट अच्छा, अपने कैरी एट की। फाइव अच्छा नहीं, फिर भी नहीं आ पॉइंट रहा। 0450 एंड 0.0950। सर ये अपने 15 का जो कैरी जो लाइक वो जो आ रहा था एक ऊपर। मिनट, आप ऐड करके देखते हैं। 10 1, ये हो गया 19, मेरा आ रहा है 0.99। ठीक है, दिस नॉट बी अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट। तो ठीक है। अगर इसे मैं दो डेसिमल तक ले तो 0.85, 0.04 और 0.9, 0.09। 3 डेसिमल तक ही आ रहा है मेरा 0.99। 0.98 और 0.95, इतना फर्क है बस। मतलब मेरे केसेस में क्या गलती है? एक एक एटलीस्ट में ये एक पास हुआ, इसमें भी एक पास हुआ, इसमें दोनों फेल हो गए, तो एटलीस्ट में इंक्लूड होता है ना, और वन माइनस कर दिया। यू हैव ऑल्सो डन द सेम थिंग, यू हैव अप्लाइड सम थ्योरम, दैट्स ऑल। मैंने बस डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करा है। और कौन सा देखना लास्ट? ओनली और वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। हाँ, लेट अस कंपेयर दिस। हाँ तो आइदर वाला ये केस है स्ट्रिक्टली, ये एटलीस्ट नहीं, एक ही बंदे को पास होना है। तो मेरा आंसर इस केस में एक बंदे को अगर पास कराना है ना, तो मेरा आंसर इन दोनों का सम है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, 0.15। 0.05 इंटू 0.9 प्लस 0.95 इंटू 0.1। मेरा आंसर ये है 45। क्या आंसर, व्हाट इज योर आंसर? मैं सोच रहा हूँ कैसे करना है इसको। मैंने तो ये वाला देसी मेथड लगाया है, पास 0.4। फेल फेल पास। 0.14 आ रहा है। हाँ आ रहा है। अच्छा, गलत है वैसे ही। क्या आ रहा है इनका? इनका 0.11 आ रहा है। एक मिनट, 9 5 और 45, तो 0.04 0.045 10 अच्छा, 14। क्या बड़ी अच्छा मेथड है इनका। इन्होंने एक ही को करा है और इन्होंने
थोड़ा क्या कहते हैं। इसने भी वही लिखा है, अनिल विल क्वालिफाई एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। मैं भी तो यही कर रहा हूँ। इफ अनिल हाँ, क्वालिफाइज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? वही तो इन्होंने भी वही किया है वैसे। बट 0.05 माइनस 0.02, 0.0 ई। दे आर गेटिंग 0.11, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, यस। मैंने भी ये लिखा है। समझ नहीं आया भाई मुझे तो ये। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई एंड द अदर विल पास, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गई इनकी, 0.05 माइनस 0.02। अच्छा, नॉट उसका नॉट है। व्हाट वाज 0.02? बोथ विल क्वालिफाई, राइट? बोथ विल क्वालिफाई वाज 0.02। हाँ, सो वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। तो दोनों में से बोथ विल क्वालिफाई काटा है इसने। 0.11। नहीं। यार मैंने भी वही रूल लगाया बाय द वे, मेरा जिससे 0.14 आ रहा है। ए उसका क्वालिफाइज बी एंड बी डज नॉट क्वालिफाई का क्या आंसर होगा? एंड, दोनों में एंड भी आ रहा है। एनी रूल? इन्होंने इसको ऐसे किया है। वो तो दिख गया मुझे, बट और तो पता नहीं क्या होगा, इसको भी देखते हैं जरा।
Okay. I think I am not convinced that my method is wrong. My method is correct. I have Okay. taken a very basic approach of identifying the right events, multiplying them, and फिर भी ये उसको ठीक गलत बोल रहा है. अच्छा, एक फर्क है however. अगर हाँ। मैं अपना आंसर 0.1214 बोलता हूँ ना, हम्म। और उसमें से मैं 0.02 काट देता हूँ, आई हाँ। गेट 0.12. बहुत बढ़िया। बट बट इससे। इसने 2 बार काटा है ना. हाँ। इस क्वेश्चन को रिविजिट करना पड़ेगा. कोई ठीक है। तरीका कि जब. अगला क्वेश्चन करते हैं। यस. कमेटी वाला क्वेश्चन है, टिपिकल. टिपिकल कमेटी. कॉम्बिनेशन। टिपिकल कॉम्बिनेशंस। यस. कमेटी. Committee is not arrangement, it is selection. सरकारी दफ्तर। पेश कर दो। पेज 3 में हो ना आप? 1 मिनट. वैसे तुम्हारी फिजिक्स की मैम ने कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया है, इतना टाइम नहीं लगता. अरे कर मैं देना एकदम चाहिए से था. स्कूल स्कूल भी नहीं गया ना मैं। ओके. ईमेल कर देना चाहिए रिजल्ट सबको. दीज आर योर मार्क्स, दीज आर योर मार्क्स. मतलब एग्जाम्स के लिए रहता है ये फंडा, ये छोटे मोटे टेस्टों के लिए नहीं होता। ओके. कॉम्बिनेशंस बना लेंगे।
One man. The other is then a woman. Okay. Out of two. Okay. Total 4C2. Third is two men. 2C2, 4C2. Okay. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार। टू टू स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा वाला। हाँ। इसलिए मैं ना वो डी मॉर्गन के चक्कर में पड़ता नहीं, मैं तो अपने तरीके से करता रहता हूँ, लेकिन आया नहीं उससे। द मॉर्गन। को ड मॉर्गन बोलते हैं? पता नहीं, वैसे बोल दिया। फ्रेंच नहीं है वो? नाम है, कुछ हाँ। भी बोल लो। नाम है, कुछ ही बोल लो। मेरे नाम कोई ब्रिटिश है, वो डी मॉर्गन ही है। ओके। मॉर्गन इज लॉजिशियन। अ वेरी ब्रिटिश नेम। हाँ। ऑगस्टस डी मॉर्गन। ओके। और बॉर्न पता है कहाँ पर? गेस करो कहाँ बॉर्न होगा। लंदन, स्कॉटलैंड। रॉन्ग। मदुरई। है? मदुरई। इंडिया? हाँ। ये तो इंडियन टाइप नहीं हो गया? ब्रिटिश तो कॉलोनाइज था ना उसके टाइम पे तो। हाँ। मतलब सही, इंडिया कॉलोनाइज था। हो ही सकते हैं। ये अगला। वैसा ही ढूंढ रहा हूँ मैं एक और। वैसे तो हम कर लेंगे। सर कल हम मुझे तो क्या ये कुछ करेंगे? क्वेश्चन इसमें बेर के नजर आ रहे हैं यार। बेस थ्योरम, सॉरी। दिस इज वियर्ड मैन। 22 थ्योरम। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। 12th का खोल लिया था, हाँ हाँ। नहीं, वो थोड़ा सा धोखा कर गया। कल यही करेंगे। एक मैं वो कॉनिक सेक्शन की मिसलेनियस रह गई मेरे से। और एक ये कल करेंगे। प्रोबेबिलिटी भी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ सॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड तो कुछ करा ही नहीं हमने। इन 21। इसकी भी मिसलेनियस है फिर। ठीक है। सो वी हैव टू डू मिसलेनियस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मिसलेनियस ऑफ कॉनिक एंड प्रोबेबिलिटी की ये वाली एक्सरसाइज। कल ही कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस भी कवर हो जाए तो कुछ ठीक है, फिर उसके थोड़ा बाद हम ज्यादा। कॉनिक भौतिकी सेक्शन। विज्ञान। कॉनिक सेक्शन मिसलेनियस। नहीं, उसके बाद फिर भौतिकी विज्ञान। हाँ। सर 10%। आप भी पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स और बायोलॉजी? यस। इंटरसेक्शन है ना ये। मैथ्स और उसकी इंटरसेक्शन अवेलेबल है। दिस विल बी सर पॉइंट फोर स्टूडेंट्स, प्लस 0.3 माइनस पॉइंट वी जीरो विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी।
मेरा आंसर है इसका 0.60. सही है व्हाट इज योर आंसर? सर। मेरे अकॉर्डिंग देखो 10% बायोलॉजी वाले मतलब यानी कि 0.1%, लाइक ठीक है, 0.1%. द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग परसेंटेज है। रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी. हम्म, तो ये निकालना है ना हमें. पी मैथ्स और बायो, हम्म, मतलब पी ए यूनियन बी. हम्म। तो ये हो पी जाएगा 40%। पॉइंट माइनस है फोर नहीं, माइनस माइनस 0.4. 0.4 प्लस 0.1, नहीं 0.3 सॉरी, माइनस 0.1 विच 0.6. इज 0.6। यस, दिस तो इज ये व्हाट आई सही वाज है। एंटिसिपेटिंग पहले से ही. सेट थ्योरी कॉस। आपने सर, एक साइंटिस्ट थे कार्ल फ्राइड्रिक गॉस, हम्म ट्वेल्थ में सुना आएगा आपने? बंदा. ट्वेल्थ में आएगा. नहीं गॉस वो, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ अरे ऑफ मैग्नेटिज्म. नहीं, आई गेस वो वाला गॉस नहीं है तो, ये मैथमेटिशियन है मैथ्स गॉस, वाला है. ये एक मैथ्स मैथ्स वाला है। वाला भी है, सुना हुआ है मैंने, नाम सुना हाँ। हुआ है. इसने भी कुछ इंटीग्रेशन में कुछ करा होगा. इसने गॉसियन. सर गॉसियन इंटीग्रल। इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है, भूल गया वो. आपने वैसे गॉसियन इंटीग्रल देखा है क्या? सॉल्व शायद. किया कभी? शायद, हो सकता है. अच्छा नहीं नहीं सर, सेम ही है वो जो इसने। सरफेस इंटीग्रल होता है ना जो, हाँ। वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल. ये फिजिसिस्ट भी थे, बड़ा महान आदमी है। कार्ल फ्रेडरिच जोहान कार्ल फ्राइड्रिक गॉस। गॉस. काफी काम करा है लाइफ टाइम में. प्रोबेबिलिटी में काम करा है, एस्ट्रोनॉमी में काम करा है, फंक्शंस में काम करा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम करा है, ज्योमेट्री में काम करा है, नंबर थ्योरम में काम करा है. नंबर थ्योरी, नॉट नंबर थ्योरी। सिग्निफिकेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए जाना जाता है ये. सारे जितने भी साइंटिस्ट सारे अच्छे अच्छे से जर्मनी से ही है, और यूके से। हम्म, वो आगे थे, सबको गरीब कर रखा था. हाँ। खाने को रोटी नहीं थी दूसरों के पास. इन्होंने हम जैसे देशों को लूटा। बहुत बुरी तरह से. बट अभी अब खुद लुट रहे हैं। अभी तो डरे हुए हैं इंडिया से. इनकी और हमारे बीच में जर्मनी की अब कितनी है जीडीपी? हाँ, 440 ट्रिलियन। तो हम थोड़ा पीछे हैं इनसे. हम फोर, एक इनकी है 4.26. नहीं, हाँ 4.40 होगी, क्योंकि जर्मनी इंडिया की इनके पास आने वाली है. 4.2 लाख करोड़ US डॉलर्स जर्मनी की। इंडियाज इकोनॉमी रैंकिंग, अभी हम इनसे इंडिया वन के ट्रिलियन पीछे हैं. 3.18 लाख। हाँ। 3.732, वो 2021 का डेटा है. मतलब कनाडा से ज्यादा है हमारी वैसे। लेट्स गो। कनाडा तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने. अरे सर, जब एक बार G20 नहीं हुआ था, हाँ. तो G20 के लिए इतने भी डेलीगेट्स होते हैं, उनका लाइक वेलकम करने के लिए होम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं एयरपोर्ट से पिक करने। हाँ. तो जस्टिन ट्रूडो जब आया, तो उसको रिसीव करने क्या कहते हैं, पंजाब का एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया। हम्म, ठीक है, दैट इज व्हाट ही डिजर्व्स. सो कोई वो खालिस्तानी सपोर्टर है ना। बहुत.
तगड़े वाला। अरे वाह, लॉटरी। If six different are random, okay, a person chooses, okay, and if these the six numbers match with the six numbers already fixed by the lottery committee, wins the prize. हाँ पता है। प्रोबेबिलिटी तो ऐसी ही होती है। 6 अपॉन सिलेक्शन है। 20। अच्छा, नहीं, सिलेक्शन है। ओके। सिलेक्शन है भाई। हाँ, तो 20 है नंबर्स। 20 C6। ये तो हो गया सैंपल साइज ना। एनी सिक्स यू कैन सिलेक्ट दिस वे। हाँ। बट बाकी के इसके अंदर कैसे आएगा 20 C1 और रैंडमली दूसरे में आएगा 19 C2। यस। सॉरी 19 ट्वेंटी और सी वन हाँ, हाँ, और फिर 18C into 18C1। इफ आई सिलेक्ट द फर्स्ट, व्हाई नॉट वन अपॉन दिस ऑफ द any number of six you select, only one is important to me. But does he say that he selects one number after another, or one combination is of relevance? One combination of six numbers is of relevance. These are all the possible combinations. Winning तो एक ही में होगी ना? So why should we do this? ये लॉटरी की जो टिकट होती है ना, हम्म। तो एक कॉम्बिनेशन पे प्राइस है। अच्छा। What do you think? How many combinations are possible? 20 say 6. Which is favorable to you? मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो ये न्यूमरेटर तो लाइक, डिनोमिनेटर ही आ रहा है। मतलब 20C1 into 19C1 into 18C1, फिर 17 नहीं और। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? व्हाट डज 20 C1 रिप्रेजेंट? सर लाइक, अगर एक नंबर पहले चूज हो गए 20 आउटकम्स में से। बट हमने तो विनिंग के लिए तो हमें एक ही नंबर चाहिए ना, 6 नंबर वाला। ओनली वन नंबर, अच्छा, वन। 1 चाहिए हमें, तो 20C1 upon 20C6। वन अपॉन 20 C6। आई कैन क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स नंबर्स आउट ऑफ 20 तो हमें दीज मेनी एक नंबर, कॉम्बिनेशंस। 6 में से हमें एक नंबर चाहिए। नहीं, इतने में से एक नंबर चाहिए। 20C6 में से हम मतलब एक नंबर चाहिए ना। एक ही कॉम्बिनेशन तो विनिंग होगी। कितनी कॉम्बिनेशन होती है लॉटरी जीतने के लिए? हाँ, सही। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। मतलब मेरी तो लॉटरी फिक्स्ड है ना, इस नंबर पे मैं पैसे दूंगा। तो अच्छा। मतलब व्हाई शुड आई क्रिएट सो मेनी ऑप्शंस इन द न्यूमरेटर यार, व्हेन हाँ। आई नो। अच्छा, ठीक है। यू आर कन्विंस्ड? मुझे आंसर देखें? मैं तो कन्विंस्ड हूँ लेगा आपकी बात से, मतलब सही तो है, लॉजिकल है। मतलब व्हाई ये शुड हाँ। आई हैव इन द न्यूमरेटर सो मेनी? यस, करेक्ट है। क्या, 1/30 मतलब वही एट है ना थाउजेंड सेवन सिक्सटी कि हमें एक ही तो कॉम्बिनेशन चाहिए 6 नंबर्स की। हाँ, यस। तो हाँ, हाँ ठीक, आंसर आ रहा है। आंसर करेक्टेड है। दिस शुड बी करेक्ट, दिस शुड बी डेफिनेटली बी करेक्ट। इट इज। 20 से 6 को सॉल्व करो तो यू गेट 38,000 समथिंग। ठीक है, काम करते हैं कल। कल इसको सॉल्व करते रहते हैं एक्सरसाइज को, और वो मिस्ट्री तोड़ते हैं उसकी, आशिमा और अनिल की, कि उनकी अपनी प्रोबेबिलिटी पास और फेलियर की वैसी है। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। मिस्टीरियस। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। यार उसमें ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम।
बोथ को सब्ट्रैक्ट करा इन दोनों ने, बोथ विल क्वालिफाई. ओके, सी यू टुमारो देन.